Now, there are two topics, allergy and autoimmune disease. So, allergy and autoimmune disease, they are both extra working of the immune system. ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का? Allergy is called as the exaggerated response. It is called as the exaggerated or the hypersensitive response of the immune system. Now, why it is called as an exaggerated response? Because it is produced against certain antigens. And ये जो specific antigens होते हैं ना, they are called as allergens. ठीक है, तुम्हें थोड़ा बहुत background idea होगा allergy का. Maybe you are also allergic to something or your family में कोई someone has allergies. तो इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एलर्जी इज अगेंस्ट पोलन ग्रेन, है ना. और एनसीईआरटी में कुछ कुछ बातें लिखी हैं. एनिमल डैंडर मतलब जो एनिमल के बाल होते हैं, एनिमल का फर होता है, राइट. एक्सक्रीटा, माइट्स, डस्ट माइट्स, है ना. कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है. देन अंडे से होती है, पीनट से होती है वेरी फ्रीक्वेंटली. किसी ड्रग से एलर्जी हो सकती है, राइट. ड्रग एलर्जीज आर ऑल्सो कॉमन. So these are all the substances that can be allergies. Anything can be an allergen. Okay, wheat allergy भी होती है. So what happens? The first time you get exposure to an antigen, the first time you get exposure to an antigen, your B cells they become hyper. B cells they become hyper and they start producing antibodies which are of which type? IgE type. Remember I told you IgE antibodies, they are involved in two things, allergies and worm infections. Now, these IgE antibodies, what they are going to do is, there are certain cells called as mast cells. There are certain cells called as mast cells, right? And these mast cells, inside them, there is something called as histamine. There is something called as histamine. तो अब ये जो IgE रिलीज होती है ना, they go and sit on these mast cell like this. They go and sit on the mast cell. So this is called as fixation. This is called as fixation of IgE. कि इस पे जाके बैठ जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस वाज पोलन ग्रेन, दिस एंटीजन वाज पोलन ग्रेन. नाउ दिस पर्सन अगेन गेट्स एन एक्सपोजर ऑफ पोलन ग्रेन. नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस? बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोजर this mast cell gets activated. Because of this mast cell gets activated. And because of mast cell activation, ये mast cell फट जाता है. ये IgE क्या करती है? आपस में क्रॉस लिंक करती हैं और अंदर ये जो हिस्टामीन स्टोर था that is released. Histamine is released and histamine is also released, serotonin is also released, and both of these things they are going to cause vasodilation. That is why the person will have redness. Vasodilation का क्या मतलब है कि ये जो ब्लड वेसल थी, ये हो गई बड़ी, इसका डायमीटर हो गया एक्सपैंड, है ना. तो अब ब्लड वेसल हो गई है बड़ी, राइट. नाउ दिस इज द ब्लड वेसल, दिस इज द बिग ब्लड वेसल. So more blood can flow, right? So you understand more blood can flow here. Obviously more blood can flow from here. So therefore what all can you have? You will have redness first of all. You can have redness, swelling and stuff like that. Second thing that you will have is, because this has expanded, so what has happened because of that? The pressure will increase. You know pressure and volume relation. And if the volume becomes more, pressure will become less. So BP is going to fall and that is a problematic situation. That is called as hypotension. एक होता है hypertension, जब BP बढ़ जाता है, ये है hypotension. ठीक है, ये हो सकता है. उसके अलावा lot of other things can happen. So that is that can be of varying severity, है ना. That can be of varying severity. ठीक है. Now to understand this, let's take a few examples of allergy and let's take a few symptoms of allergy. So because of this allergy there can be a lot of things. What are the various symptoms? ठीक है. So some persons think of it in this way कि तुम्हारे नाक के अंदर कुछ irritating चला गया, है ना, जैसे pollen grain चला गया अंदर. You can have sneezing, then you can have wheezing, especially in asthma patients. Then नाक बहने लगती है ना, आंखों में पानी आने लगता है, watery eyes, right? And you might have difficulty in breathing due to bronchoconstriction, difficulty in breathing. ठीक है. और अगर ये सिम्टम्स एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाए, जिन्हें कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग, एकदम सीवियर एलर्जी होती है ना जैसे कई लोगों को, तो उसमें बिल्कुल मरने वाली हालत में हो जाते हैं और उससे कहते हैं एनाफाइलैक्सिस, या फिर एनाफाइलैक्टिक शॉक, एनाफाइलैक्सिस, राइट, या फिर एनाफाइलैक्टिक शॉक. दिस इज कॉल्ड एज सीवियर जनरलाइज्ड
लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, सॉरी एलर्जी, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, एलर्जन बिल्कुल ब्लड में घुस जाता है, बेसोफिल को स्टिमुलेट करके हिस्टामिन सेरोटोनिन क्रिएट कराता है, वेजोडायलेशन होता है, बीपी गिरता है, एकदम बीपी लो फॉल करता है, बीपी एकदम लो, बंदा फेंट, पर्सन अनकॉन्शियस, और ज्यादा देर तक बीपी कम रहा तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, बंदे की डेथ हो सकती है, राइट। तो इट्स अ वेरी सीवियर कंडीशन एंड इमीडिएटली यू हैव टू गिव एन इंजेक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन, है ना। एपिनेफ्रिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है विच इज रिलीज्ड बाय एड्रेनल मेडुला एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट ढंग से बीट करना शुरू करेगा तो बीपी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। इमीडिएटली यू हैव टू गिव इंजेक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन, ठीक है। सो दैट इज अबाउट सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। नाउ व्हाट इज द जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, ठीक है। ये तो ट्रीटमेंट था अगर किसी को एनाफाइलैक्टिक शॉक हो जाए, मतलब तब तो देते हैं उसे एपिनेफ्रिन, बट किसी को माइनर एलर्जी है तो कैसे ट्रीट करोगे, एलर्जी को ट्रीट करना है आपने। सो यू ऑल नो दैट स्टीरॉइड्स दे आर इम्यूनोसप्रेसेंट, तो बिकॉज इम्यून सिस्टम इज एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, ज्यादा ज्यादा एक्टिवेट हो गया, ओवर एक्टिवेट हो गया, सो यू विल ट्राई टू सप्रेस इट कि भाई शांत हो जाओ, यू विल गिव steroids, right? Example is cortisol, example is cortisol. Another thing that you can give, I told you all of this is because of histamine, so you can also give antihistamines, है ना। इससे ये running nose, sneezing वगैरह ये सब ठीक हो जाती है एंटीहिस्टामिन से, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कुछ कुछ एलर्जी के, एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जी। एक तो मैंने बता दिया जनरलाइज्ड एलर्जी, एनाफाइलैक्टिक शॉक अगर बहुत सीवियर हो, है ना। उसके अलावा एक होता है हे फीवर, हे फीवर, इसे और भी कुछ कहते हैं पॉलिनोसिस, बिकॉज दिस इज ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स, हे फीवर, ठीक है। दूसरा एक्जिमा, एक्जिमा क्या होता है, स्किन एलर्जीज, है ना, इन्हें कहते हैं डर्माटाइटिस, डर्मा, डर्मा मतलब स्किन, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यानी कि कुछ रेडनेस वगैरह वहां पे हो जाती है। और एक स्किन एलर्जी होती है सिमिलर, अर्टिकेरिया, अर्टिक एरिया, ठीक है। अस्थमा में भी एलर्जिक टेंडेंसी बढ़ जाती है, अस्थमा इज ऑल्सो एलर्जिक कंडीशन, ठीक है। तभी तुमने सुना होगा कि अस्थमा वालों को जैसे जब स्प्रिंग वगैरह वाला सीजन आता है ना, जब पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सो अस्थमा इज ऑल्सो गोइंग टू कॉज एलर्जी। देन लास्ट इज ब्रोंकाइटिस, लास्ट इज ब्रोंकाइटिस, मतलब इस टाइप की और भी काफी कुछ होता है एलर्जी में, राइट। नाउ वन थिंग दैट योर एनसीईआरटी इनडायरेक्टली मेंशंस इज कॉल्ड एज द हाइजीन हाइपोथेसिस, हाइजीन हाइपोथेसिस। इसका क्या मतलब है, ये वर्ड याद रख लो, हाइजीन हाइपोथेसिस। इसका कहने का मतलब है कि वी हैव मूव टू एन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, जहां पे हम ओवरली सैनिटाइज करते हैं, सड़क का खाना नहीं खाना बेटा, गंदा पानी मत पियो यहाँ का, ये मत करो वो मत करो, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट इफ यू स्पेशली सी रिच हाउस होल्ड्स, दे हैव मेड देयर चिल्ड्रन सो सेंसिटिव, एकदम अल्ट्रा फिल्टर्ड पानी पिलाएंगे, एकदम अल्ट्रा हीटेड चीजें, मतलब किसी भी टाइप का बैक्टीरियल एक्सपोजर ना हो, वी आर ट्राइंग टू डू दैट, वी आर ट्राइंग टू मूव टू अ हाइजीनिक थिंग। बट बिकॉज ऑफ दैट जो कुछ नॉर्मल खुली हवा का एक्सपोजर होना था, आपने पॉलन्स का एक्सपोजर जैसे खेतों वगैरह में होता है, राइट, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर यू आर एक्सपोज टू एज अ नॉर्मल पर्सन, तो उनका एक्सपोजर भी नहीं होता। बिकॉज ऑफ दैट योर बॉडी बिकम्स अल्ट्रा सेंसिटिव एंड दैट माइट लीड टू एलर्जीज, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइजीन हाइपोथेसिस, ठीक है। Not very important, but your NCERT mentions this word indirectly. That is why I'm telling you that sometimes if you get it in the options, your NCERT has mentioned about it. ठीक है, hygiene hypothesis. So that is the way you have to read the NCERT. एकदम उसे break down करके उसमें जो छुपी हुई बातें हैं वो किसी को आपको बतानी पड़ेंगी, right? So that's about allergies.